بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم دو معاملات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مارگلا ڈائیلاگ فورم کا معاملہ ہے اور پاک امریکہ تعلقات کا معاملہ ہے، جبکہ دوسری جانب 16 دسمبر کا معاملہ ہے۔ 16 دسمبر ہماری تاریخ کا وہ سیاہ ترین باب ہے جس سے جتنی دفعہ بھی جس کا ذکر کیا جاتا ہے، آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ خون سے تر ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے مارگلا ڈائیلاگ فورم سے خطاب کی بات کر لیتے ہیں، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شرکت کی اور انہوں نے پاک امریکہ تعلقات کو آگے بڑھانے کی جہتوں کی نشاندہی کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات چاہتا ہے، پاکستان سودے بازی والی تعلقات نہیں چاہتا۔ انہوں نے بھارتی اقدامات پر امریکہ کی خاموشی کو تعلقات کی سطح کم ہونے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی صورتحال میں امریکہ اور چین کے مابین توازن رکھنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے امریکہ پاکستان کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر کیمرون منٹر نے یہ مشورہ دیا کہ پاکستان اپنے داخلی معاملات کو بہتر بنائے۔ پاکستان اور امریکہ 70 برس تک ایک دوسرے کے تصویراتی اتحادی رہے ہیں اور امریکہ نے پاکستان کو سرد جنگ کے عہد میں اتحادی بنایا تھا۔ پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر سیٹو اور سینٹو کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ امریکہ کا دفاعی اتحادی بن کر پاکستان نے خطے کی اہم طاقت سوویت یونین اور ہمسایہ ملک بھارت سے تعلق بہتر بنانے کے مواقع بھی ضائع کیے، اور یہ امریکہ کی وجہ سے ہوا۔ امریکہ نے سوویت یونین اور بھارت کو پاکستان کے لیے خطرہ بنا دیا۔ بھارت پہلے ہی معاندانہ رویہ رکھتا تھا، اس لیے قدرتی طور پر یہ اختلاف پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گیا۔ پھر بعد ازاں سانحۂ مشرقی پاکستان وقوع پذیر ہوا تو امریکہ بطور اتحادی پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہ کر سکا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ بطور اتحادی پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان کو ایک شکایت یہ رہی کہ دوستی کے 70 برسوں کے دوران امریکہ نے پاکستان کو بین الاقوامی تنازعات میں استعمال کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہم استعمال ہوتے آئے۔ امریکہ کو پاکستان یا افغانستان سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو جہاد کے نام پر پرجوش کیا گیا۔ امریکی فلم سازوں نے سوویت یونین کے خلاف فلمیں بنا کر افغان مجاہدین کے نام کی۔ امریکی تھنک ٹینک پاکستان کے بارے میں مثبت تاثر پر مبنی رپورٹس مرتب کرتے رہے، اور اس مہربانی کی وجہ یہی تھی کہ امریکہ نے سوویت یونین سے لڑائی کا آخری میدان افغانستان کو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہی ہوا۔ پاکستان اس آخری مارکے کو کامیاب بنانے کے لیے جہادیوں کی فراہمی، سامان کی ترسیل اور راہداری کے طور پر کردار ادا کر رہا تھا، اور یہ کردار ادا کروایا جاتا رہا۔ سوویت یونین کو شکست ہوئی اور وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ امریکہ نے اس جنگ کی فتح کا صحرا اپنے سر پر سجایا اور نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر یونی پولر نظام متعارف کرایا۔ افغانستان میں فتح کے بعد امریکہ کو جو طاقت ملی، اس کا سفاکانہ استعمال بعد ازاں مشرق وسطیٰ میں کیا گیا۔ عراق کو برباد کر دیا گیا، شام، لبنان، یمن تک اس طاقت کے مظاہر بکھرے ہوئے ہیں، اور افغانستان کو جنگ کے بعد بے یار و مددگار چھوڑ کر جانے والے امریکہ نے پاکستان سے بھی رشتہ تبدیل کرنے کی ٹھان لی ہے۔ امریکہ طویل عرصے تک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو افغانستان میں اپنے مفادات کے تناظر میں دیکھتا رہا ہے۔ 9/11 کے بعد جب پھر سے پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس وقت بھی افغانستان کا مسئلہ درپیش تھا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ سے جو تعاون کیا، وہ 75,000 پاکستانیوں کی جان لے گیا۔ $100 ارب سے زائد کا نقصان انفراسٹرکچر کو پہنچا۔ امریکہ نے جو وعدے کیے ان کو پورا نہ کیا۔ کولیشن سپورٹ فنڈ کی رقم دبا لی، دفاعی آلات اور ان کے فاضل پرزجات کی فراہمی پر پابندیاں لگائی گئیں۔ بھارت کو موقع دیا کہ وہ افغان سرزمین پر دہشت گردی کے ٹھکانے بنا کر پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کرے۔ کیا یہ امریکہ نے موقع نہیں دیا تھا؟ لازماً امریکہ نے ہی موقع دیا تھا، اور پاکستان جب امریکی فرمائش کو اپنے مفادات کے خلاف قرار دے کر عمل سے انکار کرتا تو امریکی حکومت کا کوئی ادنا سودیدار سخت پیغام لے کر آ جاتا۔ دنیا جانتی ہے کہ افغانستان پر مرضی کی حکومت مسلط کرنے اور پورے ملک کو چھاؤنی میں تبدیل کرنے کے باوجود امریکہ وہاں امن قائم نہیں کر سکا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ وہاں امن قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہتے افغان عوام نے غیر ملکی طاقتوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ افغان طالبان کی اس مزاحمت نے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کو اس قدر زد کیا کہ انہیں باعزت انخلا محال دکھائی دینے لگا۔ کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود امریکی اہلکار بیرک سے باہر خود کو غیر محفوظ تصور کرتے تھے۔
दिन ब दिन ताकत पकड़ते तालिबान के हाथों जान गंवाने का अंदेशा था। 20 बरस तक भारत को अपना तस्वीराती इत्तेहादी बनाकर इस पर नवाज़शात करने के बावजूद अमेरिका को मदद न मिल सकी। आखिर सुपर पावर को अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान से मदद लेना पड़ी थी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का एहतमाम किया। इस मुज़ाकराती अमल के नतीजे में अमेरिका पुरअमन अंदाज में अफगानिस्तान से बच निकला और अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद खित्ते में मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भारत को सौंपने पर अमेरिकी हुक्काम में इख्तिलाफ है। अमेरिकी बेवफाइयों पर पाकिस्तान चीन के साथ तस्वीराती ताल्लुकात बढ़ा रहा है और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मामलात में अब अमेरिकी अमल दखल से आज़ाद हो रहा है। हालिया दिनों सदर बाइडन की जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने शिरकत से माजरत करके ये बता दिया कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए सिर्फ अपनी शराइत मुसल्लत करने की इजाजत नहीं होगी। क्या ये छोटी कामयाबी है? ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह के दौरान मुतअद्दिद बार अमेरिका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। पाकिस्तान के लिए नामजद अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान से मुआशी ताल्लुकात को बढ़ाना अमेरिका के मफाद में है। हालिया दिनों में अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस और आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अरकान के सामने भी पाकिस्तान ने ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अफगानिस्तान में बहाली के काम, भारत की बेजा हिमायत से गुरेज और दो तरफा मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के निकात रखे थे। हकीकत यही है कि ताल्लुकात की बहाली की अब यही सूरतें हैं। अगर इन पर अमल ना किया गया, यानी भारत की बेजा हिमायत से गुरेज ना किया गया, दो तरफा मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ ना दिया गया और अफगानिस्तान में बहाली के काम पर जोर ना दिया गया, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात एक दफ़ा फिर खटाई में पड़ सकते हैं। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद सानह अजीम 16 दिसंबर की बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन 16 दिसंबर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में चलने वाली गोलियों से 18 करोड़ अवाम का सीना छलनी करने का दिन है। लहू से फतह के चिराग रोशन करने का दिन, बुज़दिल दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने का दिन, वो दिन जो 144 ख़ानदानों में हमेशा के लिए क़यामत बर्पा कर गया। वो दिन जब 144 चेहरे अमर हो गए। वो दिन जब शहदा के बहने वाले लहू का एक एक कतरा मादरे वतन के दिफा पर निछावर होकर कौम की सदा बन गया। इंसान ज़िंदगी में कई तरह के हादसात और सानहात से गुजरता है। वक्त हर ज़ख्म भर देता है। इंसान को सब्र भी आ जाता है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको मरते दम तक नहीं भुलाया जा सकता। 16 दिसंबर का दिन हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही तल्ख़ यादें रखता है। 16 दिसंबर के रोज़ पेशावर में खून की होली खेली गई। आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा एक ऐसा ही दुख है जो ताउम्र साथ रहने वाला है। सानहा APS की बात करते हुए आंखें आज भी पुरनम हो जाती हैं। ये पूरे मुल्क के लिए एक तकलीफ दे दिन था, और कितना तकलीफ दे हो सकता है शायद हम अंदाज़ा न लगा सकें, लेकिन ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी हिफाजत वाले स्कूल में भेजा और फिर शाम को उनकी गोलियों से छलनी लाशें मासूल हुईं। 16 दिसंबर की तारीख देखते ही जहन उन बच्चों के चेहरे सामने ले आता है जो इस रोज़ स्कूल में हमले का निशाना बने। जैसे वालिदैन की सिसकियाँ और माओं की मुंतज़िर आंखें आज भी उन बच्चों का ताक़ुब कर रही हैं। उस दिन को याद करके कोई अपने आंसू नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन जो हर साल 16 दिसंबर को उन मासूम और बेगुनाह बच्चों की याद दिलाता है जो नहीं जानते थे कि उनकी किताबें और उनका जिस्म लहू में डूब जाएगा। सानहा आर्मी पब्लिक ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए। वालिदैन अभी तक सानहे के नफ्सियाती असरात से नहीं निकल सके। वो जुल्म नहीं भूले, वो शहादत नहीं भूले, मासूम फरिश्तों की इबादत नहीं भूले। 16 दिसंबर 2014 को सुबह 10 बजे सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। ये पाकिस्तानी तारीख़ का इतना दर्दनाक दहशतगर्दाना हमला था जिसने न जाने कितने दहशतगर्दाना हमलों को पीछे छोड़ दिया। 16 दिसंबर 2014 को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 7 दहशतगर्द FC के लिबास में मलबूस पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में पिछली तरफ से दाखिल हुए और हॉल में जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। उसके बाद कमरों का रुख किया और वहाँ पर बच्चों को गोलियाँ मार मार कर शहीद किया। 9 असातिज़ा, 3 फ़ौजी जवानों को मिलाकर कुल 144 शहादतें और 113 से ज़ायद अफराद इस सानहे में ज़ख्मी हुए। शहीद होने वाले 132 बच्चों की उम्रें 9 से 18 साल के दरमियान थीं। पाकिस्तान आर्मी ने 950 बच्चों और असातिज़ा को स्कूल से बाहिफाजत निकाला। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया जबकि 6 दहशतगर्द मारे गए। वाक़े की जिम्मेदारी कल अदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। उस वाक़े के बाद
पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब को मज़ीद तेज़ कर दिया। फौजी कार्रवाई ने अस्करियत पसंद ग्रुपों को जड़ से उखाड़ फेंका और उनमें से बहुत से सरहद पार अफगानिस्तान चले गए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मुबैना तौर पर APS हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई थी। पाकिस्तान में ये वाहिद दहशतगर्दी का वाक़या था जिसकी अफ़गान तालिबान, अल-कायदा और TTP जमात उल अहरार ने अवामी सतह पर मज़म्मत की थी। मेरे बच्चों की शहादत ने ये पैगाम दिया, ताज़ा तर हमसे हुई आज शुजाअत की रसूम। कर्नल शौकत अली यूसुफजई ने APS के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सानिया APS में एक तालिब इल्म की यादें शेयर की। उन्होंने बताया कि तालिब इल्म शेर शाह स्कूल ऑडिटोरियम से निकलकर जान बचाने में कामयाब हो गए थे जब दहशतगर्द वहां दाखिल हो गए थे, लेकिन उन्हें अपने छोटे भाई अहमद शाह की फिक्र थी। उसने शिद्दत से अपने भाई को ऑडिटोरियम के बाहर तलाश किया और बहुत से दूसरे फरार होने वाले तलबा से पूछा। फरार का लफ्ज़ शायद गलत इस्तेमाल होगा। बच जाने वाले तलबा से पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा देखा है। इनमें से किसी ने अपने भाई के बारे में नहीं बताया और वो परेशान हो गया और डर गया कि शायद इसका छोटा भाई इज्तिमा गाह के अंदर फंस गया हो। वह वापस आया और उसी ऑडिटोरियम में चला गया जहां दहशतगर्द मासूम तलबा को गोलियों से भून रहे थे। माँ दरवाज़ा देखती रह गई और बच्चे स्कूल से जन्नत चले गए। सानिया APS एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है जो कोई भी पाकिस्तानी कभी भी नहीं भूल सकता। मासूम फूल, मासूम बच्चे जो सिर्फ तालीम हासिल करने गए थे, उनके भी ख्वाब थे, उनको भी जीना था। उनके वालिदैन और बहन भाइयों ने उनके मुस्तकबिल के न जाने कितने ख्वाब देखे होंगे, मगर कौन जानता था कि 16 दिसंबर को स्कूल जाने वाले बच्चे वापस घर जिंदा नहीं लौटेंगे। सानिया APS के शहीद बच्चों के वालिदैन के आंसू इन 7 बरसों में भी खुश्क नहीं हो सके। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या हमने उन खुश्क होते आंसुओं से कुछ सबक सीखा है? क्या 144 शहादतें जो हमने दी वो हमें किसी सोच विचार में मुब्तला कर पाईं? हम क्या ये बात सीख सके कि हमें कौमी हमीयत, कौमी गैरत और पाकिस्तानियत को मद्देनज़र रखना होगा, बल्कि यूँ कह लीजिए कि सिर्फ मद्देनज़र नहीं रखना होगा बल्कि मुक़द्दम रखना होगा। क्या आज हम पाकिस्तानियत, अपनी कौमियत और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके अपनी कौम को मुक़द्दम रखने वालों में शामिल हो गए हैं? क्या हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिन्हें आलमी सतह पर सराहा जाए या ना सराहा जाए, कौमी सतह पर सराहा जा सके? हमारे लिए एक दफ़ा फिर सोच का मकाम है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगानगत को पैदा करना है और यकजहती को पैदा करते हुए अपनी कौम को सफ़े अव्वल की कौमों में लाकर खड़ा करना है। बसूरत दीगर फिर कोई सानिया APS होगा, फिर बच्चे शहीद होंगे, फिर माँओं की गोद उजड़ जाएगी और हम मज़म्मत पर मज़म्मत करते रह जाएंगे, हम इल्ज़ामात की सियासत करते रह जाएंगे और फिर हाथ मलने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।